everyone, online class 8th, subject SST, chapter 6, part 2, sedimentary rocks अवसादी सैलें. The fossil tiny pieces of stone fossil which are being carried by water, air and snow are stored in layer on land or under sea bottom. Such assembled substances are called sediments. These layers of sediment, when under pressure and heat, hardens to form sedimentary or rock with layers. The water has important role in their existence, so it is also called waterborne rock. Sandstones, limestones, clay, coal are the example of these rocks. This also contain the remains of animals and vegetation. Around 80% upper layer of the earth is made of sedimentary rocks. अवसादी सैलें जल, वायु एवं हिम द्वारा बहा कर लाए गए कंकड़, पत्थर के छोटे छोटे कण, जीवाश्म आदि भूभाग या समुद्र तल में परतों के रूप में जमा होते जाते हैं. इस प्रकार जमे हुए पदार्थ को अवसाद कहा जाता है. यही अवसाद की परतें गर्मी तथा दबाव के कारण कठोर हो जाती हैं और उन्हें अवसादी या परतदार सैल कहा जाता है. इसके निर्माण में जल की प्रमुख भूमिका होने से इसे जलज चट्टान भी कहते हैं. बलुआ पत्थर, चैन का पत्थर, चिकनी मिट्टी, कोयला आदि इसके उदाहरण हैं. इसमें जीव जंतुओं और वनस्पतियों के अवशेष भी पाए जाते हैं. पृथ्वी के ऊपरी धरातल का लगभग 80% भाग अवसादी चट्टान से ढका हुआ है. मेटामॉर्फिक रॉक्स कायांतरित सैलें. When the shape, color, the characteristic of igneous and sedimentary rocks due to internal heat and pressure completely gets changed, then these completely changed rocks are called metamorphic rocks. Marbles from limestone, quartzite from sandstone, slate from clay, graphite and diamond from coal are made. These rocks are very hard and granular. कायांतरित सैलें जब अग्नेय और अवसादी सैलों के रूप, रंग और गुण और आंतरिक ताप तथा दबाव के कारण पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाता है तो उन्हें कायांतरित या परिवर्तित सैलें कहा जाता है. चूने के पत्थर से संगमरमर, बलुआ पत्थर से क्वार्ट्जाइट, चिकनी मिट्टी से स्लेट तथा कोयले से ग्रेफाइट और हीरा बनते हैं. ये सैलें अधिक कठोर या रवेदार होती हैं. लैंडफॉर्म स्थलाकृतियाँ. The landforms are of various types on the earth. The surface of relief features of the earth are not uniform everywhere. Landforms keep on changing. The landforms as per formation process of unique characteristic can be classified into 3 categories: mountain, plateau, plains. पृथ्वी पर विविध प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं. पृथ्वी के धरातल सब जगह एक समान नहीं है. स्थलाकृतियाँ के आकार तथा बनावट में भिन्नता पाई जाती है. समय समय पर इनमें परिवर्तन भी होते रहते हैं. निर्माण प्रक्रिया तथा विशिष्ट लक्षणों के आधार पर स्थलाकृतियाँ के 3 मुख्य वर्गों में में रखा है. फर्स्ट है पर्वत, सेकंड है पठार, थर्ड है मैदान. माउंटेन, पर्वत. Mountain is a mass of land considerably higher than the surrounding area, more than 1000 meters above sea level. They have narrow or conical peaks and steep slopes. Over 20% of land area on the earth is occupied by mountains. There are several types of mountains: block mountains, volcanic mountains and folded mountains. Mountains are useful for us as most of the rivers have their origin from the mountain. They also influence climate and minerals are also found in the mountain. पर्वत धरातल का वह भाग है जो अपने आसपास के भाग से अत्यधिक ऊंचा या अर्थात समुद्र तल से 1000 मीटर इससे अधिक ऊंचा हो, उसे पर्वत कहलाता है. पर्वत के शीर्ष भाग कम चौड़ा, चोटी नुमा तथा
इसका ढाल तीव्र होता है। पृथ्वी के संपूर्ण स्थलीय भाग के लगभग 20% भाग और पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। पर्वतों के कई प्रकार होते हैं। फर्स्ट है ब्लॉक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, बलित पर्वत आदि। पर्वतों में से कई लाभ होते हैं। ये नदियाँ का उद्गम स्थल होते हैं, ज्वालामुखी पर प्रभाव डालते हैं तथा इनसे खनिज पदार्थ भी प्राप्त होता है। प्लेटू पठार। प्लेटू इज ए बोर्ड ऑफ एंड flat area of land rising sharply above 600 meters or more above sea level surrounding lowlands. There appear like tablelands. Plateau are also of various types like mountain plateau, continental plateau and plain plateau. We get minerals and some of the plateau are very fertile. पठार धरातल का वह भाग जो ऊंचा विस्तृत और ऊपर से मेज की भांति सपाट हो तथा जो समुद्र तल से 600 मीटर या उससे अधिक ऊंचा हो, पठार कहलाता है। पठार भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे पर्वतीय पठार, महाद्वीप पठार, तटीय पठार आदि। पठारों में से कई खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। कई पठार बहुत उपजाऊ होते हैं। प्लेन मैदान। Low flat and fertile areas on Earth's surface whose elevation is usually low is now as plain. The plain areas are found up to 350 meters above the sea level. The plains are suitable place the human habitat because people fulfill their needs of food, clothes, housing and other necessities. Hence all the civilization of the world organized in plains area. The plains are now as the cradle of civilization. These areas are the most developed part on the earth. मैदान धरातल का समतल चौरस कम ऊंचाई वाला भाग मैदान कहलाता है। इनकी ऊंचाई समुद्र तल से अधिकतम 350 मीटर होती है। मैदान में कई प्रकार के होते हैं। मैदान मानव निवास के लिए सबसे उपयुक्त स्थल है, क्योंकि मैदान में उसकी भोजन, वस्त्र, मकान और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसलिए विश्व की लगभग सभी सभ्यताओं का जन्म मैदानी भूभाग से हुआ है। मैदानों की सभ्यता का पालन कहाँ जाता है? पृथ्वी का ये विकसित भाग है। चेंजिंग लैंडफॉर्म, भू संचलन की क्रियाएं। We know that the level of surface of the earth is not equal everywhere. At some places is flat plains, mountains are plateaus. These are created by the changing forces. The internal and external forces of the earth keep on changing constantly. This is called of land movement process. The internal powers generate two types of movements, horizontal and vertical. They can be classified into two groups. First, long time or slow earth movement. Second, sudden और first earth movement. हम जान चुके हैं कि पृथ्वी के धरातल सर्वत्र एक समान नहीं है। कहीं पर समतल मैदान है तो कहीं पर पर्वत या पठार है। इसकी रचना परिवर्तनकारी शक्तियों द्वारा होती है। पृथ्वी के आंतरिक तथा बहिर्भागायत शक्तियाँ लगातार धरातल में परिवर्तन करती रहती हैं। इन्हें भी भू संचलन की क्रियाएं कहा जाता है। आंतरिक अर्थात भूगर्भिक शक्तियों में से दो प्रकार की गतियाँ उत्पन्न होती हैं, क्षैतिज तथा लंबतः। इन्हें दो वर्गों में रखा जाता है। फर्स्ट है दीर्घकालिक या मध्य भू संचलन। सेकंड आकस्मिक या तीव्र भू संचलन। फर्स्ट है फोल्डिंग। लॉन्ग टाइम और स्लो अर्थ मूवमेंट। दीर्घकालिक भू संचलन। This happens very slowly. This includes continental and mountain making process. The continental land movement can be seen on the west area. This movement works in horizontal direction, bearing down highlands and rising lowlands. These make continent, plateau and plains on the earth. Opposite to it is the mountain making movement, where the force work horizontally. This creates pressure or tension inside the earth and rocks are broken or bent. These have effects or limited areas
This is the process of mountain making. Mountain making takes place by two ways. First, folding, rifting. दीर्घकालिक भू संचलन यह अत्यंत मंद गति से होता है। इसमें महाद्वीप एवं पर्वत निर्माणकारी भू संचलन गतियाँ सम्मिलित हैं। महाद्वीप निर्माणकारी भू संचलन विशाल भाग पर देखा जाता है। ये गतियाँ लंबवत दिशा में कार्यरत होती हैं, जिससे भूपटल के ऊपर उठने तथा नीचे धंसने की क्रियाएं होती हैं। इससे पृथ्वी पर महाद्वीप, पठार और मैदान की रचना होती है। इसके विपरीत पर्वत निर्माणकारी संचलन में क्षैतिज शक्ति कार्यरत होती है। इससे धरातल में तनाव या दबाव उत्पन्न होते हैं और शैलों के मुड़ने और टूटने की क्रियाएं होती रहती हैं। इसकी प्रभाव सीमित क्षेत्रों में होता है। पर्वतों में निर्माण इसी क्रिया से होता है। पर्वत का निर्माण फर्स्ट वलन तथा सेकंड भ्रंशन दो रूपों में होता है। फर्स्ट है फोल्डिंग। द हॉरिजॉन्टल लैंड मूवमेंट इन द अर्थ केसेस वेव लाइक बेंड्स इन rocks. Such bends are called folds. In it, the few parts of rock lift upward due to bending, and some of them bend down. वलन पृथ्वी के अंदर क्षैतिज भू संचलन द्वारा शैलों में लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं। इस तरह के मोड़ों को वलन कहते हैं। इसमें शैल स्तरों के कुछ भाग मुड़कर ऊपर उठ जाते हैं तो कुछ नीचे की ओर धंस जाते हैं। Rifting, भ्रंशन। The process of rock breaking with pressure and tension of the horizontal land movement is called rifting. Few parts of land lift and few parts go down the rift. Valley or block mountains are the example of it. अब हम देखते हैं भ्रंशन। क्षैतिज भू संचलन से उत्पन्न दबाव तथा तनाव के कारण शैलों के टूटकर अलग होने की प्रक्रिया को भ्रंशन कहते हैं। इसमें भूपृष्ठ का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है तो कुछ भाग नीचे की ओर धंस जाता है। भ्रंश घाटी या खंड पर्वत इसके प्रमुख उदाहरण हैं। सडन लैंड मूवमेंट, आकस्मिक भू संचलन। Sometimes due to unexpected forces there occurs destructive event on the earth with sudden land changes. These events are called sudden land movement. These happen in two ways. A number volcano, B earthquake. आकस्मिक भू संचलन कभी कभी अंतर्जात बलों के कारण भूपटल पर आकस्मिक धरातलीय परिवर्तन के साथ साथ विनाशकारी घटनाएं भी हो जाती हैं। ये घटनाएं आकस्मिक भू संचलन कहलाती हैं। ये प्रक्रियाएं दो प्रकार की होती है। फर्स्ट ज्वालामुखी, सेकंड भूकंप। The volcano is prominent among agents which causes sudden changes on the earth. The volcano is a round hole or an open vent on the earth. The extremely hot gases, liquid, hot water, pieces or rocks as smoke come out from the interior of the earth from these holes. The hole from which these substances come out is called volcano's mouth or crater, and the entire activities are called volcanic eruption. ज्वालामुखी। पृथ्वी तल पर होने वाले आकस्मिक प्राकृतिक घटनाओं में ज्वालामुखी प्रमुख है। ज्वालामुखी भूपटल पर एक गोल छिद्र और या दरार वाला खुला भाग होता है। इससे होकर पृथ्वी के अत्यंत तप्त भूगर्भ से गैसीय तरल मैग्मा, उष्ण जल, चट्टानों के टुकड़े, राख, धुआं निकलता है। जिससे छिद्र से उपरोक्त पदार्थ निकलते हैं उसे ज्वालामुखी या क्रेटर कहते हैं। यह और सारी प्रक्रिया को ज्वालामुखी कहा जाता है। The internal part of the earth is hot. There are three reasons for this heat. पृथ्वी का आंतरिक भाग गर्म है। इस गर्मी के तीन कारण बताए जाते हैं। फर्स्ट, द इंटरनल पार्ट इज हॉट सिंस द स्टेंस ऑफ अर्थ। पृथ्वी के बनने के समय से ही आंतरिक भाग गर्म है। सेकेंड, द ब्रेकअप ऑफ रेडियो एक्टिव मिनरल्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्रिएट्स हीट।
पृथ्वी के अंदर रेडियोधर्मी खनिज पदार्थों के टूटते रहने के कारण गर्मी बढ़ती रहती है। ड्यू टू द आउटर प्रेशर ऑफ अर्थ लेयर द इंटरनल पार्ट्स बिकम हॉट। पृथ्वी के बाहरी परतों के दबाव के कारण भी आंतरिक भाग गर्म है। According to scientists, the Earth's crust is divided into pieces. These pieces are called plates. These plates keep on moving due to internal heat. The earthquake or volcano that erupts on Earth is due to the movement of these plates. The Earth's surface becomes weak with the movement of plates and the magma pieces of rocks etc. material come out from the earth. This is called eruption of volcano. वैज्ञानिक के अनुसार भूपर्वतीय अनेक टुकड़ों में से विभाजित हो रहे हैं। इन टुकड़ों को प्लेट कहते हैं। आंतरिक गर्मी के कारण ये प्लेट खिसकती रहती हैं। पृथ्वी के ज्वालामुखी एवं भूकंप होने के कारण इन प्लेटों को खिसकना है। प्लेटों के खिसकने से भूपटल कमजोर हो जाता है और पृथ्वी के अंदर से मैग्मा, चट्टानों के टुकड़े, राख आदि पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। इन्हें हम ज्वालामुखी के उद्गार कहते हैं। टाइप्स ऑफ वोल्केनोज। ज्वालामुखी के प्रकार। एक्टिव वोल्केनो। द वोल्केनोज विच फ्रीक्वेंटली इरुप्ट आर कॉल्ड एक्टिव वोल्केनोज। द Etna and the Stromboli volcanoes of Italy are the examples of active volcanoes. अब हम देखते हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी जिन ज्वालामुखियों में एक बार उद्भेदन होने के बाद निरंतर समय समय पर उद्भेदन होते रहते हैं उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। इटली की एटना तथा स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी इसके उदाहरण है। स्लीपिंग और डोर्मेंट वोल्केनो। अर्धसक्रिय या प्रसुप्त ज्वालामुखी। These are the volcanoes which were frequently erupting earlier but sometimes might suddenly erupt. These are called half active or dormant volcano. The Vesuvius of Italy is the example of dormant वोल्केनो। सेकंड, अर्धसक्रिय या प्रसुप्त ज्वालामुखी ये वह ज्वालामुखी है जिनमें कई बार उद्भेदन के बाद उद्भेदन की समस्त क्रियाएं कुछ समय के लिए बंद हो जाती हैं किंतु अकस्मात पुनः उद्भेदन हो जाता है। उन्हें अर्धसक्रिय या प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। इटली के वेसुवियस ज्वालामुखी इसका उदाहरण है। थर्ड है डेड और एक्सटिंक्ट वोल्केनो। विसुप्त या शांत ज्वालामुखी। ए वोल्केनो which is neither active nor dormant and which has not erupted for a long time and there is no chance of eruption is called dead or extinct volcano. The Mount Kilimanjaro of Africa is the example of such volcano. Most of the volcanoes are found near the coastal areas of the Pacific Ocean and in the continental region. Hence, this region is called the Ring of Fire because of many active volcanoes in it. विसुप्त या शांत ज्वालामुखी जिन ज्वालामुखी में एक बार उद्भेदन होने के बाद लंबे समय तक उद्भेदन नहीं होता उन्हें पुनः उद्भेदन की संभावना भी नहीं होती। ऐसे ज्वालामुखी विसुप्त या शांत ज्वालामुखी कहलाते हैं। अफ्रीका के किलिमंजारो पर्वत इसका उदाहरण है। सर्वाधिक ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के चारों ओर तटीय भागों तथा महाद्वीप क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें पेटी का अग्निवलय कहा जाता है। थैंक यू।